Dear students, we are studying chapter biomolecules, and in this we have talked about various chemical compounds present in the body of living organisms, and these various chemical substances, how these are formed? These are formed by chemical reactions, means when there will be fusion or union of two substances that will form the new substance, means because new bond formation will take place, so new substance will be formed, and there may be breakdown of some of the substances, and that will also lead to the formation of a new product. Now these are the chemical reactions because of which these biomolecules are formed in the body of living organisms. Now these chemical reactions, if they are catalyzed by any of the enzyme, by a particular enzyme we can say, then the rate of reaction increases. And what are enzymes? We have studied in our previous class that they are proteins. They are proteins, and they increases the rate of reaction. They increases the speed of reaction. And we have talked about the example also, that when a carbon dioxide reacts with water, it forms carbonic acid, and it forms on near about 200 molecules of carbonic acid in 1 hour. But when there is an enzyme present, name of the enzyme is carbonic anhydrase, and in the presence of that enzyme, this reaction is catalyzed and near about 6 lakh molecules are formed in every second. तो यानी हमने क्या देखा कि एंजाइम की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो गया है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट such high rates of chemical conversion. So what is there in the enzymes that they increases the rate of reaction at a higher speed? As we know that enzymes, they are the proteins, and we have talked about the structure of proteins, that they may be primary, secondary and tertiary. Then these enzymes may be primary, secondary or tertiary, and these if they are secondary and tertiary proteins, then what is there? वी हैव टॉक्ड अबाउट देयर स्ट्रक्चर कि क्या होगा, जो उनका जो बैकबोन है, जो उनकी थ्रेड है, अमीनो एसिड की जो चेन है वो राउंड हो जाती है अपने ऊपर ही और होलो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं. और जब वो होलो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं राउंड और होलो, तो यानी व्हाट इज़ प्रेजेंट, वहाँ पर कुछ पॉकेट्स बन जाती हैं, एंड दीज पॉकेट्स और गैप्स दे आर नोन एज एक्टिव साइट्स. So now we are known about the active sites which are present in the enzymes. Now what will happen? What is chemical reaction? जो भी केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्शन हो रहा है बॉडी में कुछ भी बन रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन? जो केमिकल विच इज़ टेकिंग पार्ट इन दैट रिएक्शन और द केमिकल विच इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट. यानी जिसने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, दैट इज़ अ सबस्ट्रेट. And now enzymes, what are enzymes? They are proteins. They have three-dimensional structures and they are including active sites. What they will do? They will convert this substrate into a product. So how we can represent them symbolically? S arrow P means S is giving P. S is substrate and P is product, means this substrate which is a chemical, it will be converted into a product. And now how this rate of reaction will increase? It will be increased by the presence of enzymes. So what these enzymes will do? They will combine or they will bind with the substrate. तो यानी एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम के पास क्या है? पॉकेट है, क्लेफ्ट है, जिसे हम एक्टिव साइट भी बोलते हैं. उस जगह पर कौन आकर जुड़ जाएगा? सबस्ट्रेट आकर जुड़ जाएगा. एंड दिस सबस्ट्रेट नाउ व्हाट इट विल डू? इट विल डिफ्यूज टूवर्ड्स द एक्टिव साइट. सबस्ट्रेट किसके साथ जुड़ रहा है? एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ. एंड व्हेन दिस एंजाइम एंड सबस्ट्रेट they are together, they will form a substance or a product, obligatory formation जिसको हम बोलते हैं, that is ES complex. ES complex means enzyme substrate complex. और ये यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना है ये एक ट्रांजिएंट फिनोमिना है. ट्रांजिएंट फिनोमिना मीन्स इट विल बी चेंज्ड, ये स्टेबल नहीं है. अभी एंजाइम को सबस्ट्रेट मिला, एंजाइम की जो पॉकेट यानी जो खाली जगह थी वहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच हो गया,
अब ये कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है, दिस इज़ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये एक ट्रांजिएंट फिनोमिना है, मीन्स इसमें अभी चेंजेस होने हैं. यहाँ क्या होगा, सबस्ट्रेट बाउंड हो गया एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ में, एंड नाउ इट विल फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर. और जब वो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं या ट्रांजिएंट फिनोमिना बोलते हैं, वेरी सून जो बॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट थी या तो वो ब्रेक हो जाएंगी और न्यू बॉन्ड्स जो बन जाएंगी, एंड व्हाट विल बी रिलीज, प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड. एंड प्रोडक्ट रिलीज़ होकर के, प्रोडक्ट कहाँ से रिलीज़ हुआ, एंजाइम की एक्टिव साइट्स से, और एंजाइम की एक्टिव साइट्स क्या हो गई हैं, फिर फ्री हो गई है. यानी व्हाट वी कैन से, in the structure of substrate get transformed into structure of product. यानी जो सबस्ट्रेट है वो किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में. किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में. और जो पाथवे था, जिन स्टेप्स को फॉलो हुआ ट्रांसफॉर्मेशन के ड्यूरेशन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर. क्योंकि अभी चेंज हो रहा था, सबस्ट्रेट वॉज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. नाउ देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट. यानी कि जो सबस्ट्रेट है और एक प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट स्टेबल है, प्रोडक्ट भी स्टेबल है, लेकिन जब सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जुड़ गया तो क्या हुआ, उसने प्रोडक्ट देना है, तो वहाँ बीच में बहुत सारे जो हैं स्टेट्स मिलेंगे जो कि क्या होंगे, अनस्टेबल होंगी. तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स. क्योंकि अभी उनमें चेंज होना है, चेंज होते होते उन्होंने क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है. यानी कि जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर अनस्टेबल. स्टेबिलिटी क्या होती है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर. यानी कि इफ़ वी टॉक अबाउट दिस इज़ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, x-axis and y-axis. So what is taken, then progress of reaction, it is represented on x-axis, potential energy, it is represented on y-axis. Now as you are able to see, substrate is there and what is being formed, product is formed. So what it will do, x-axis is representing the progression of structural transformation or states through the transition state. ठीक है. And what y-axis is representing, it is representing the potential energy. और यहाँ पर जो चीज़ हम नोट कर रहे हैं, energy level difference between S and P. You are able to see S and P, potential energy is more with the substrate and it is less with the product. यानी कि यहाँ जो if P is at lower level than S, the reaction is an exothermic reaction. प्रोडक्ट अगर लोअर लेवल पर आ गया, एनर्जी मीन्स सबस्ट्रेट के पास मोर एनर्जी थी, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एनर्जी गिवन आउट हो गई. एंड व्हेन एनर्जी इज गिवन आउट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं तब हम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं. लेकिन वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक और इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एस जो है इट हैज़ टू गो थ्रू अ हाई एनर्जी स्टेट. यानी कि चाहे कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, चाहे कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, सबस्ट्रेट के पास मोर एनर्जी होनी चाहिए एज कंपेयर टू प्रोडक्ट फॉर्म, ताकि जो रिएक्शन है वो हो सके. एंड द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस from that of this transition state, you are able to see here in this graph also, the transition state is written here. This is the transition state and this is the substrate. and what we are talking कि हमने क्या देखना है यहाँ पर, कि जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट. सबस्ट्रेट के पास जो एनर्जी थी, ट्रांजिशन स्टेट के पास जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. मीन्स अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ट्रांजिशन स्टेट हैज़ मोर एनर्जी, और यही जो डिफरेंस है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन
एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है। एंजाइम्स क्या करेंगे, यू आर एबल टू सी हेयर ऑल्सो, सी एक्टिवेशन विदाउट एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। हम क्या देख रहे हैं, जब एनर्जी थी, एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट है, एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या है, लेस है, इतनी है सिर्फ, बट इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम दिस इज मोर, यानी कि व्हाट एंजाइम इज डूइंग, एंजाइम इज ब्रिंगिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी टू अ लोअर लेवल। हम देख पा रहे हैं अगर एंजाइम नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी मोर है, एंजाइम प्रेजेंट है एक्टिवेशन एनर्जी लेस है, यानी एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर लेवल पर ले आया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस, ये जो लो एनर्जी हो गई है एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की प्रेजेंस में, एंड दैट्स वाई द सबस्ट्रेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। Now the next topic is nature of enzyme action, means how the enzymes, what is their basic nature and how they will work. Enzyme represented by E, substrate it is represented by S. We know that enzyme means E has particular spaces or the places or the pockets which are known as active sites or binding sites. Now what the substrate will do, it will bind with the active sites of the enzyme and a complex will be formed which is known as enzyme substrate complex. Now this enzyme substrate complex, it is very shortly, थोड़े से टाइम के लिए फॉर्म हो रहा है and then it is being converted into enzyme product and after that it is converted into enzyme and product. You are able to see enzyme is present, सबस्ट्रेट जो है उसके साथ जुड़ गया एक्टिव साइट पर, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हमने पढ़ा कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं, फॉर्म हो रही है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट किस में चेंज हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट में। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, एंजाइम विल गेट फ्री फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एंजाइम एंड प्रोडक्ट, टू सेपरेट थिंग्स वी विल अचीव। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन कर लेंगे एंड नाउ एंजाइम इज़ फ्री टू रिएक्ट विद अनदर सबस्ट्रेट। यानी हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो एंजाइम है इट इज़ एनहांसिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन ओनली, बट इट इज़ नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस। तो यानी कि ये सिर्फ क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, खुद इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, ये सिंपली क्या करेगा, इट विल रिलीज द प्रोडक्ट एंड इट विल गेट फ्री हो जाएगा और दूसरे सब्सटेंस के साथ, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट हो जाएगा। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इज सबस्ट्रेट विल बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये बिल्कुल लॉक एंड की फिनोमिना है। देखिए बेटा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, आपने एक चीज़ देखी होगी, एक लॉक है, ताला, उसकी एक पर्टिकुलर की होती है, लॉक के पास एक स्पेस होता है जहाँ पर की फिट हो जाती है, यानी कि लॉक जो है वो क्या है, एक एंजाइम है, और जो स्पेस है जहाँ पर की जानी है दैट इज़ द एक्टिव साइट। अब जो है पर्टिकुलर की आती है, हम उस की को उसमें इंसर्ट करते हैं, इन द सेम वे उसके पास एक सबस्ट्रेट आएगा और उसकी वाली जगह पर फिट हो जाता है। सो इसे हम लॉक एंड की फिनोमिना भी बोलते हैं। हर एक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही चेंज कर पाता है, हर एक को चेंज नहीं करता। इन द सेम वे जैसे कि हर एक लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है, वी कैन नॉट यूज़ एनी ऑफ द की ऑन दैट लॉक, ठीक है। इन द सेम वे हर एक सबस्ट्रेट के जो है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम के साथ ही क्या बना सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है। सो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स कि फर्स्ट स्टेप इज दैट द एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉक पर हमने क्या लगाई, की लगाई, तो सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड कर गया एंजाइम के साथ में। बाइंडिंग से उसका क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। सो बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप।
एंड उसके साथ वो कम्प्लीटली फिट हो जाएगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे वो, एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने के बाद में सबस्ट्रेट की जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी एंड इट विल फॉर्म न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड नाउ product will be released, enzyme will be free to bind with another molecule of the substrate and in this way this cycle goes on कि किस तरह से एंजाइम रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी? This enzyme can be affected by various conditions like temperature, pH, change in the substrate concentration or binding of the specific chemicals. मीन्स एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो अफेक्ट हो सकती है किसके कारण? इन सब कंडीशंस के कारण, जिससे उसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो चेंज हो जाता है. सो हाउ टेम्परेचर एंड पीएच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी? एंजाइम्स जो हैं दे वर्क इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच. मीन्स एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पर एंजाइम्स वर्क करते हैं. ईच एंजाइम जो है उसकी हाईएस्ट एक्टिविटी होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और पीएच पर, और जहाँ पर किसी पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट है एक पर्टिकुलर पीएच या पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच. नाउ इफ़ अगर उस से ज़्यादा या कम जो है टेम्परेचर या पीएच होता है तो जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, बिलो भी और अबव भी. एंड लो टेम्परेचर, इफ़ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम वर्क करेगा दैट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर. इफ़ द टेम्परेचर इज़ बिलो दैन दैट, उससे कम टेम्परेचर है तो फिर क्या हो जाएगा? एंजाइम्स जो हैं दे विल बिकम इनएक्टिव. But if the temperature is higher than the optimum temperature, then what will happen? The structure of the enzyme will be destroyed because proteins will become denatured. और अगर proteins या enzymes का structure ही destroy हो गया, उसका active site का structure ही destroy हो गया, तो भी फिर reaction नहीं होगा. So the enzymes work at optimum pH and optimum temperature. Then this is the graph shown, pH and temperature. What it is shown here, this is the optimum temperature, we can say. See, pH, this is the optimum pH where the activity of the enzyme has become maximum. एंड बिलो दैट, उससे नीचे भी क्या थी? एक्टिविटी कम थी. एंड उससे मोर पर भी एक्टिविटी क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई है. सो दिस इज़ द ऑप्टिमम पीएच. इन द सेम वे टेम्परेचर, एंजाइम जो हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करते हैं मैक्सिमम. अगर टेम्परेचर उससे लो है देन ऑल्सो एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज़ लेस, और अगर हाई है तो भी उससे एक्टिविटी क्या हो जाती है? लेस हो जाती है. सो दिस इज़ अबाउट the presence of pH and temperature which affects the activity of an enzyme. Now if we talk about the next, that is concentration of the substrate, कि substrate की concentration भी enzyme को affect करती है. Suppose हमने भी have taken a substrate and if there is increase in the substrate concentration, the velocity of the enzyme reaction rises at first. यानी हमारे पास जो substrate था, we were having enzymes also. Enzymes were reacting with the substrate, and when we increase the amount of substrate then the enzymatic activity also increased. लेकिन अगर उसके बाद हम उसमें और substrate ऐड करते जाते हैं then the activity of the enzyme will not be increased. Reason is कि suppose we have 5 enzymes and we have 3 substrates. ठीक है, means enzymes are free, रिएक्शन इज़ गोइंग ऑन. लेकिन अगर हमने एंजाइम 2 और ले लिए और हमने जो है सबस्ट्रेट भी और ले लिए और उनका नंबर जो है सपोज बराबर हो गया 7 एंजाइम 7 सबस्ट्रेट, नाउ व्हाट विल हैपन? रिएक्शन भी फास्ट हो गया है. बट इफ़ सपोज एंजाइम्स आर 7 बट द सबस्ट्रेट्स आर 9, देन व्हाट विल हैपन?
अब एंजाइम जो हैं वो फ्री ही नहीं है, 7 सबस्ट्रेट ही ज्वाइन कर सकते हैं 7 एंजाइम्स के साथ में। सो व्हाट विल हैपन, जो 2 सबस्ट्रेट हैं वो तो उतने फ्री ही रहे, देयर विल बी नो इंक्रीज इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी और द रेट ऑफ रिएक्शन। ये नंबर मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाने के लिए बताया है कि अगर एक सर्टेन अमाउंट तक हम सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, उतने एंजाइम्स अगर अवेलेबल नहीं हैं, देन देयर विल बी नो फ्री एंजाइम्स टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट and so there will be no increase in the activity of the enzymes. Now समटाइम्स व्हाट इज़ देयर कि जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में देयर मे बी सम ऑफ द केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इस तरह की जो केमिकल्स हैं जो किसी एक्टिविटी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, शट्स ऑफ कर रहे हैं, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स and the process is called as inhibition. And suppose sometimes what happen कि कुछ chemicals तो ऐसे होते हैं कि they are closely resembling in shape with the substrate. So what will happen, these inhibitors they will combine or they will join at the active site. ये inhibitor उस active site पर जाकर जुड़ जाएंगे, substrate जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि इनका structure क्या है, same है। enzyme को भी पता नहीं चल पाता कि whether it is a inhibitor or a substrate, और इनहिबिटर वहाँ अटैच हो गया, उससे क्या होगा, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पर भी स्टॉप हो जाता है। सो द केमिकल्स विच आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द सबस्ट्रेट, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। उस इनहिबिटर को हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे। क्लोज स्ट्रक्चर होने के कारण कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कंपटीशन करेगा सबस्ट्रेट के साथ में और उससे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा, एंजाइम एक्शन विल डिक्लाइन एंड एग्जाम्पल इज इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जहाँ पर भी एज आता है दैट इज़ द नेम ऑफ एंजाइम। सो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इट इज़ एन एंजाइम। व्हाट हैपन्स, यहाँ पर मेलोनेट नाम का जो एक केमिकल है जो कि क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, किसका, सक्सिनेट का। तो सक्सिनेट जो है वो जुड़ ही नहीं पाता एंजाइम के साथ में क्योंकि मेलोनेट जुड़ जाता है और मेलोनेट उसका क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जुड़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन उसने स्लो कर दिया। सो दे हैव सम बेनिफिट्स ऑल्सो, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के कुछ फ़ायदे भी हैं। दे आर यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल pathogens. Some of the bacteria are there which causes disease in plants and animals. तो उनकी एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Then next topic is classification and nomenclature of enzymes. So this is what is how many types of enzymes are there and how they are named. Thousands of enzymes are there. Many of them have been discovered and they are isolated and they are studied. These are differentiated into 6 classes and with near about 4 to 13 subclasses, and they have different names also. So the names of the enzymes are oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases and isomerases and ligases. These are the 6 types of 6 classes of enzymes. And first is oxidoreductase or dehydrogenase. These are the enzymes which are catalyzing the oxidoreduction reaction. दो substrate present है, one is reduced and the other is oxidized. So one is reducing and the other is oxidizing, and this reaction is called as oxidation reduction reaction. और यहाँ पर जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडो रिडक्शन का काम कर रहा है बिटवीन द 2 सबस्ट्रेट्स। देन ट्रांसफेरेजेस, दीज आर द एंजाइम्स, वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक ग्रुप को बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, एज यू आर एबल टू सी हेयर S and S डैश, दीज आर द 2 सबस्ट्रेट्स। सो G क्या है,
कैटालाइजिंग अ ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप G, एक इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं और रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास.